the heap sort. So already anyone knows the word heap. Already you have heard about the heap sort. Ever you have heard about the heap word? Yes or no? Yes, sir. Good. So someone can tell me what is the means of heap? Means क्या represent करता है? What is the means? Indirectly, I am not going the मतलब in the depth of the heap, but I just want to tell you. Okay, wait. Heap, you can say, sir, this is almost complete binary tree, complete binary tree. Or sir, what is the means of complete binary tree? Means if you have some node, means already you have done with the trees. That's why I am telling you directly. Complete binary tree means balance should be equal. Means if this node has a two child, okay, so all then this node also have the two child, again this node already have the two child, so you can say complete binary tree or almost complete binary tree. Sometimes this will happen, this node is not present, means already in the some array is given to you like this: 1 2 3 4 5 6, 6 node is given to you, 2 5 6 8 9 and 1. Okay, then you will create a binary tree, complete binary tree. If there is only the 6 node is present, then you will say almost binary tree is there. Okay, complete binary tree. So for the starting or the for the understanding, you can understand the heap, sir. Heap is almost complete binary tree. Now I will go for the heap sort. Okay, what is the means, sir, of the heap sort? So basically, some array or linked list will be given to you. Means same like this. So you can take this example I am taking, 10, 20, okay, 30, 40, 50, 60, and 70. Okay, I am taking these elements and I am just want to create. I am just want to means do the exercise of the heap sort with the help of this array. So what will happen? First, in the heap sort, the first step will be build the heap. Build heap. Okay, that will be the first step. And most of the time second step, that is the heapify. Already I know that you have already done this part, heapify and build heapify. Okay, so there are two steps in the heap sort. First you will build a heap, then you will go for the heapify. So if you know these things, that will be very easy to you, means to create, or you will short this thing. Otherwise, so you have to study this part. So first I am taking one example and try to means want to give you some glimpse of this. So if you want to create, so theoretically first I will tell you the theoretically. Okay, so if you want to make a binary tree or the complete binary tree with the help of this thing, so you can say, sir, I can start from here. Okay, so first node will be my 10. Okay, this is my first node. After that you can say, sir, this is my first node. After that I will make a child means, sir, second node will be 20. Okay, third node will be 30. Fourth node means you will start in this direction, means you will start left to right. Okay, so you can say, sir, this is my first. Okay, this is my second, this is my third. So again this node will have two child. So there will be two things, means, sir, after 30 40 will be here and 50 will be here. Okay, after that 60 will be here, sir, and 70 will be here. So this is my complete binary tree, sir. You can say, sir, this is 1 2 3 at the position, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. Okay, so just you have put it these element in a binary tree. After that you will make a heap. So build a heap. Now you will use the first step, build heap. So how can you create this heap? So try to understand. First we will go for the last leaf node. At the leaf node we will reach. कुछ चीजें हैं जो बता देता हूँ. If you have means n number elements in your array.
तो हाउ मेनी लीफ नोड्स विल बी देयर, कोई मुझे गिन के बताएगा कितना होगा? Just tell me, give me the answer. How many leaf nodes will be there if n is here, n is 7, then how many leaf nodes present in this? Give me the answer. Hello. यार reply तो करो. 6 leaf nodes, total number of leaf nodes. You can count. Yeah, that is 4. Means leaf node means last node. So 1, 2, 3 and 4. So if you have the number 7, then you're getting the leaf nodes means 4. So you can say, so generalize, I am doing this generalized thing, means if you have the n number of n elements in an array, then total number of leaf nodes will be n by 2. That will be the integer part, so you can take the maximum, means here it will come 3.5, so you can say 4 will be the number of leaf nodes will be 4. Okay, so n by 2, every time n by 2 leaf nodes will be present if the n is the total number of elements in this. Okay, so first thing is this, and after that you can do, sir, so total number of leaf nodes I can write here, that is n by 2. Okay, so now you will see, sir, I will go to the internal part. Internal part means you can say, sir, this node, this part, this part, this is the internal part. So you can say, sir, first I will go for these part. So you can see, sir, first, if you will check, sir, if you will check the node, this node has the greater value than the child. Is it possible? Is it possible? Balanced binary tree? It is not possible, na? Yes or no? Please reply. Means you are saying, sir, this is 30, this is 60, this is 70. Okay, this is 30. So you can say, sir, ये parent है, this parent has a lesser value than the child. It is not possible. So what I can do, sir? Sir, I can swap this part. Means greater value I can swap with this thing. Means सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इंटरनल नोड्स पे जाके चेक करना है कि हमारा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, पेरेंट्स की वैल्यू अगर आपकी कम है, अगर आपके चाइल्ड से, तो आपको स्वैपिंग करनी है कहीं ना कहीं. So this swapping will be present, means the maximum value of this, if I will swap this part with the 70, if I will do this part, means 70 is here and 30 is here. Okay, I am swapping this thing. Okay, then it will be balanced. Is it okay or not? Please reply. Is it okay? Come on, please reply. सुन तो रहे हो? Yes. Okay, good. Yes. Okay, so what you can do, sir, I can do this thing. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर, अब मैं इसको जो भी स्वैप कर रहा हूँ उसको मैं येलो कलर से लिखूंगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड. तो मैंने पहला स्टेप वो किया, क्योंकि यहाँ पे कई स्टेप होंगे, हर बार बनाना मेरे लिए. चलो पहला स्टेप मैं कर देता हूँ कि सर, आई एम स्वैपिंग दिस पार्ट, मीन्स एट द प्लेस ऑफ 30, at the place of 30 I will write the 70. Okay, and at the place of 30 at the place of 70 I will swap the thing with the 30. Now you can check, is it balanced now? तो मैं कह सकता हूँ कि पेरेंट की वैल्यू ज़्यादा है एंड चाइल्ड की वैल्यू कम है, सो इट इज़ बैलेंस्ड नाउ, सर. ओके, सेम थिंग. सो यू कैन से इंटरनल नोड अगर कहो, इंटरनल लोड 2 3 इज बैलेंस्ड नाउ. ओके, अब मैं आ जाता हूँ 2 के पास. नाउ आई एम कमिंग टू द 2. ओके, at the place of 2 you can see, sir, again this is happening, sir, 20 40 and 50. So child has the greater value than the parent. Again it is happening, sir, I will change. इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे चेंज करते हैं. तो आप किससे स्वैप कर दोगे? सर, आई विल स्वैप विद द 50. मैं 50 से स्वैप कर देता हूँ. ओके, सो आई एम स्वैपिंग विद द 50. इज इट ओके बेटा? क्लियर है? तो 50 की, हाँ बेटा. I have a doubt when you swapped 70 and 30. So basically in BST हम क्या करते थे कि लेफ्ट वाले को पहले स्वैप करते थे, राइट? तो उसके मे बी तो 60 and 30 होना चाहिए फिर स्वैप, फिर 70 और 60 होना चाहिए स्वैप अकॉर्डिंग टू BST आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर इन हीट ब्रो. एक सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बोलना भूल गया. आई एम यूजिंग द मैक्स हीप, आई एम टेकिंग द मैक्स हीप. ओके, सो ये बोलना भूल गया था, दैट्स वाई. ओके, सो आई एम टेकिंग द मैक्स हीप.
I am using max. There are two types of heaps. Means you can do this thing with the help of the min heap, okay, and with the help of the max heap, okay. ठीक है, तो I am taking the max heap means I am trying means maximum value will be upper side and lower value will be means in after this thing. So that's why I am using the max heap. I am telling you the concept of the max heap. If you will reverse that concept, that will be the min heap. Is it okay? Okay, just try to understand first, then you can ask beta. Okay. So if you means यहाँ तक समझ आ रहा है, ये बताओ अभी जो समझाने की कोशिश कर रहा yes हूँ. yes ओके ओके ओके, चलो. तो यहाँ पे मैं क्या किससे स्वैप करना था, मुझे क्या था, 20 था ना शायद. यस और नो, या 20 नहीं है, 20 होगा. तो मैंने स्वैप किसके साथ कर लिया, दैट इज द 20 एंड 50. इज इट ओके? तो यहाँ पे देखो, अभी मैं बस ये कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को वैल्यू को बड़ा कर रहा हूँ और चाइल्ड की वैल्यू को छोटा कर रहा हूँ. तो ये नोट भी हमारा ठीक हो गया. अभी मैं और ये वाला इन दोनों में चेक नहीं करता, इन दोनों में चेक नहीं कर रहा कि व्हाट इज द कंडीशन. मीन्स इस तरफ आपका छोटा आना चाहिए, इस तरफ बड़ा आना चाहिए. आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग. ओनली आई एम चेकिंग एट द नोड पोजिशन. मीन्स एवरी टाइम आई एम चेकिंग दिस पार्ट ओनली. मीन्स दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर, this value should be greater than these two values. Okay, इनकी पोजीशंस क्या है, यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, आई एम नॉट चेकिंग दिस पार्ट. आई एम जस्ट चेकिंग दिस वैल्यू. दिस जो पेरेंट है उसकी वैल्यू हमें ग्रेटर मिलनी चाहिए. इज इट ओके? अभी बस इतना चेक कर रहा हूँ. क्लियर है बेटा? ओके. So first thing is there. So you can see sir, you can see this thing and this thing is in control now. Means ये हमारा पार्ट सही हो गया. Is it okay बेटा? Just tell me. ये दो पार्ट ठीक हो गए. नाउ यू कैन चेक सर अभी तो आपने ये तो ठीक कर दिए दोनों, बट सर दिक्कत तो यहाँ आ गई. सर जो नोड है, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ जो पेरेंट से कनेक्टेड है. आप यू विल नॉट सी दिस पार्ट, यू विल सी दिस पार्ट ओनली. सर नाउ इसको चेक कर रहा हूँ, तो सर यहाँ भी तो यही कंडीशन है. तो बताइए सर ये कैसे सही होगा. तो सर अभी बताया कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू. इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके साथ स्वैप करना है 10 को. देखो ये बड़ा है, मीन्स 50 और 70 में कौन सा बड़ा है, 70 बड़ा है. मीन्स यू विल स्वैप दिस पार्ट. ओके सर, मैं स्वैप कर देता हूँ. तो यू कैन स्वैप, देन 70 विल बी हियर. ओके सर 70 तो यहाँ आ गया. ओके 10 को यहाँ पे रख दिया, 10 को यहाँ पे रख दिया. चलो ये वाला पार्ट तो ठीक हो गया. यस और नो, जल्दी से बताओ. यस और नो, यहाँ पे छोटे आ गए, यहाँ पे बड़ा आ गया. इज इट ओके? देन दिस पार्ट इज ओके. बट सर अभी आपने मुझे बताया था कि मैं चेक कर रहा हूँ सर ये वाला पार्ट, लेकिन अब सर ये वाला पार्ट तो गड़बड़ हो गया ना. सर जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से ये वाला पार्ट तो गड़बड़ हो गया. इज इट ओके? हुआ या नहीं? यस यस और नो. यहाँ पे बड़ा छोटा आ गया और ये दोनों बड़ी वैल्यू है. तो रिमेंबर दिस थिंग. इसको कैसे सॉल्व करते हो? ऑल द टाइम आई हैव मीन्स एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू, यू कैन यूज द रिकर्सन. मीन्स रिकर्सन में क्या होता है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप लगातार चलता जाता है. मीन्स क्या होगा सर, पहले हमने अगर इसको बैलेंस कर लिया है, देन आई हैव टू चेक द अनदर पार्ट कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू स्वैप हुई है तो उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो भी ठीक है या नहीं. तो उसके लिए भी मुझे चेक करना पड़ेगा. सभी लोग मेरे साथ हो, समझ में आ रहा है? फिर से बताओ, जल्दी बताओ. ओके Yes, sir. गुड गुड. तो सर अगर ये वाले पार्ट को भी मैं चेक करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इन सब में कौन सी वैल्यू मेरी बड़ी है, जल्दी से बताओ. कौन सी वैल्यू बड़ी है? 60. तो मैं सर ये करता हूँ कि 10 को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ. मैं क्या करता हूँ सर, 60 को यहाँ रख देता हूँ और 10 को यहाँ पे रख देता हूँ. ठीक है सर, मेरी अब कोई दिक्कत है क्या? अब ये बताओ, पूरे इस पार्ट में कोई दिक्कत है? जो मैं कंसेप्ट लेके चला था, मींस आपका जो पेरेंट है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए देन द चाइल्ड्स. तो यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट इस लेवल पे चेक करते हैं, 70 50 60 ये ओके है. ये वाले इंटरनल पार्ट में चेक करते हैं, 50 40 20. इज इट ओके? यस. नाउ 60 10 और 30. इज इट ओके? यस. तो सभी पार्ट हमारे क्लियर हो गए बेटा? सभी चीज सही सही है ना, सही पोजीशन पे है? जल्दी से yes बताओ. sir. हाँ चलो, मैं एक टेबल बना लेता हूँ इसके लिए. स्टार्टिंग में मेरे पास क्या था, स्टार्टिंग में मेरे पास ये कंडीशन थी. मैं इसको हाफ पार्ट में कर देता हूँ. जल्दी से एक टेबल बनाते हैं तो आपकी याद समझ में आए शायद. एक सेकंड.
10 20 30 40 50 60 एंड 70। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ओके चलो, मेरे पास स्टार्टिंग क्या था जो आपको गिवन था, गिवन एरे क्या था, गिवन एरे था दैट इज 10 20 30 40 50 60 70। अभी आप ये समझ लो, आप कहोगे सर सॉर्टेड तो दिया हुआ था, ठीक है सॉर्टेड दिया हुआ था, इट इज ओके, बट हमें हीप सॉर्ट अप्लाई करना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आपको बोला कि मेक द हीप, जो भी आपको एरे दिया गया इसकी हेल्प से बिल्ड द हीप, बिल्ड हीप। तो बिल्ड हीप होने के बाद में आपकी कंडीशन ये आ गई है। अब वन पोजीशन पे अभी क्या है, वन पोजीशन पे है आपका 70। ओके, सेकंड पोजीशन पे क्या है सर 50 और 60, सेकंड और थर्ड पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, सर यहाँ लिख देता हूँ 60। ओके, उसके बाद क्या है सर 40 20 10 और 30, 40 20 10 और 30। सर आफ्टर हीपीफाई, ओ सॉरी, आफ्टर बिल्ड द हैव हीप, सो दिस विल बी द कंडीशन। इज इट ओके? सब लोगों को ये समझ आया कि ये कैसे जनरेट होके आया है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको? सब लोग समझ गए हो? केवल दो कंसेप्ट लगाए मैंने, सॉरी एक ही कंसेप्ट लगाया कि मुझे क्या करना है कि नोड को हमेशा जो आपका पेरेंट नोड है उस पर ग्रेटर वैल्यू रखनी है, क्योंकि आई एम यूजिंग द मैक्स हीप। अगर मिन हीप करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, तो वो भी बता दूंगा। दो तरीके होते हैं, तो आई एम यूजिंग द फर्स्ट, आई एम यूजिंग द मैक्स हीप। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पेरेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इस पेरेंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई इन दोनों से, ठीक है। लेकिन ये भी पेरेंट है इन बच्चों के, ये चाइल्ड्स हैं, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए इनसे बड़ी, तो इनकी बड़ी है वैल्यू, इसकी भी बड़ी है वैल्यू। तो मैंने पूरी तरीके से हमारा एक हीप को डेवलप कर लिया। देखो अब जब हीप आपका एक बार डेवलप हो गया, फर्स्ट स्टेप है मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेप बिल्ड हीप, आफ्टर दैट आई एम सेइंग हीपीफाई। सेकंड जो आपका स्टेप है दैट इज द हीपीफाई। हीपीफाई क्या कहता है, हीपीफाई क्या कहता है कि ऐसा करो, देखो हीपीफाई के लिए है कि आपका जो फर्स्ट नोड है, आपका जो फर्स्ट नोड है, मैं नोड वन से लिखता हूं कि जो नोड वन है, जो फर्स्ट नोड है, और जो आपका लास्ट नोड है, जो आपका लास्ट नोड है, उसको क्या कर दो, उनके बीच में कर दो स्वैपिंग, उनके बीच में कर दो स्वैपिंग, स्वैप कर दो एक दूसरे को। जो फर्स्ट नोड है और जो लास्ट नोड है उसको कर दो आप स्वैप। इज इट ओके? पहला स्टेप इसमें समझ आ रहा है हीपीफाई में? ठीक। और आप क्या कर दो, मैं क्या करूंगा, जो n का साइज था उसको रिड्यूस कर दो n-1 से, n-1 से मींस आप क्या कर रहे हो, पहले फर्स्ट नोड और लास्ट नोड को स्वैप कर रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद सर मैं क्या करता हूं कि एक एक एलिमेंट को डिस्कार्ड कर रहा हूं, मींस अपनी एरे को छोटा करता जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा वो अपनी ठीक पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे क्या करते हो हम लोग, लीफ नोड पे सभी पोजीशंस को सही कर रहे हैं। तो मेरे क्या कहने का मतलब है कि सर लीफ नोड जो लास्ट पोजीशन है उस पर मैं करेक्ट करेक्ट एलिमेंट को लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए जब वो करेक्ट पे आ जाएगा तो मैं एरे को छोटा कर लेता हूँ, अभी मैं समझा दूंगा ये पार्ट। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि सर इसी तरीके से अगर मैं पूरा लूप चलाता रहूँ तो मैं कह सकता हूँ सर, ये मैं हीपीफाई फिर वर्ड लिख दे रहा हूँ कि हीपीफाई अगर ए दिया हुआ है और आपका हर एक बार एक एलिमेंट ले लो, एलिमेंट वन, और सभी में ये काम करते जाओ, जितने भी एलिमेंट हो, क्योंकि एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, सर पहला नोड और एन नोड के बीच में स्वैपिंग करते जाओ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल अगर मैं 3 लाइन में इसको लिखूं तो मैं कह सकता हूँ सर, कोड भी लिखना हो अगर आपको, कि आपको क्या करना है सर, स्वैप करना है किसके, एरे के फर्स्ट एलिमेंट में और एरे के लास्ट एलिमेंट को, ए एन को स्वैप कर दीजिए सर। ठीक है, मैंने स्वैप कर लिया सर। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एरे के साइज को रिड्यूस कर दूँ सर n-1 से, ठीक है। n-1 से एरे के साइज को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, n इज इक्वल टू n-1 ले लिया, ओके सर। और इसके बाद सर लगातार एक हीपीफाई लगाते चलो हर एक वैल्यू के लिए, किसकी, एरे में ए एलिमेंट है और जो भी एन की वैल्यू हो जा रही है, तो ये तीनों काम बार बार करते जाओ। तो ये 3 स्टेप हैं। चलो इन तीनों स्टेप को देख के हम समझते हैं कि क्या ये एप्लीकेबल है हमारे काम में। तो हमारे पास अभी क्या अवेलेबल था, ये मैं फिर से बना ले रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए आपको, कि मेरे पास कंडीशन क्या है, कि इस तरह की कंडीशन है। बेटा ये बताते जाओ, आप लोगों की अभी तक समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को आया समझ में? यस सर। यस गुड सर। गुड गुड गुड। सर वो तो देखो, पिछली वाली स्लाइड हाँ दिखा,
नहीं आई है समझ में? ये इसी को समझा रहा हूँ अभी, ठीक है? ये तीन जो लेफ्ट साइड। इस हाँ, अभी अभी ये वाला पार्ट है ना, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसी को समझा रहा हूँ मैं। 70 50 60 ये लिख देता हूँ, 70 50 60। ओके, और क्या था आपका? 40 20 10 30, 40 20 10 एंड 30। ओके, ये मैंने पोजीशंस दे दी थी, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने सबसे पहले क्या किया, बिल्ड हीप का तो मैंने काम कर लिया है। मीन्स मैंने ऑलरेडी आई हैव डेवलप्ड ए हीप। सर इसके बाद कह रहे हो सर कि सेकंड पार्ट में आपको हीपीफाई लगाना है सर। अब हीपीफाई क्या है सर? हीपीफाई में मुझे ये करना है, मैं सबसे पहली लाइन क्या बोल रहा हूँ? मैं सबसे पहली लाइन बोल रहा हूँ कि सर A1 जो है ना, जो भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमारा एन एलिमेंट मतलब जो लास्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट नोड, और सर जो लास्ट नोड है इसमें क्या कर दो सर? मैं बोल रहा हूँ बार बार सर, इसमें कर दीजिए स्वैपिंग, इसमें कर दीजिए स्वैपिंग। यही लिखा था फर्स्ट स्टेप यही लिखा है। अब इसका मतलब क्या हो गया सर? मुझे क्या है कि फर्स्ट नोड हमारा क्या है, 70 है। इज इट ओके बेटा? 70 है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको सेवेंथ नोड, लास्ट नोड हमारा 7 नंबर है, तो 1 और 7 को कर दो स्वैप। ओके, ये करनी है हमें स्वैपिंग। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया सर? 30 को पहुंचा दो ऊपर और 70 को पहुंचा दो इसकी जगह। तो आप क्या कह रहे हो सर? इसको अगर स्वैप करने का मतलब क्या हो गया सर? यहाँ पे तो ला रहा हूं मैं 70, अब मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ इसको, और इसको यहाँ पे ले आऊंगा मैं 30। इज इट ओके? ये समझ आया? ये वाला पार्ट पहला स्टेप समझ आ गया बेटा? यस। अब समझ आ गया? जो मैंने लास्ट में लिखा है, जो पहला स्टेप ये लिखा था स्वैपिंग करनी है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? जब मैंने फर्स्ट स्टेप कर दिया सर, तो इसका मतलब ये है, देखो अब देखो कि लास्ट पोजीशन पे आपका आ गया 70। ठीक है, लास्ट पोजीशन पे आ गया 70। अगर मैं इस पूरे, मैंने इतना ही अभी तक बताया, अभी इसको मैं फिर दोबारा इस टेबल में रख दूं कि फर्स्ट इटरेशन के बाद या फर्स्ट हीपीफाई के बाद या फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हो रहा है कि आपका लास्ट पोजीशन पे 70 आ गया था और 30 चला गया था यहाँ पे, बाकी आपके सभी इसी तरीके से थे। ओके, यही हुआ था ना? सेम यही हुआ है ना बेटा? जल्दी बताओ। 30 60 40, अभी मैं केवल एक स्टेप मतलब कर रहा हूं, तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इससे। तो देखो, ये 70 अपनी राइट पोजीशन पे आ गया, दिस 70 इज ऑन राइट पोजीशन। इज इट ओके? ये लास्ट पोजीशन पे आ गया है, तो 70 अपनी राइट पोजीशन पे है। अगर ये राइट पोजीशन पे है, एक सेकंड, एक गलती हो रखी है क्या? 30, देखो 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 देखो, गलती हो रही है अभी। चलो अभी अभी मैं इसको फिल नहीं करता। देखो, अगर ये मैंने कर लिया, पहले स्वैप कर लिया, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि हीपीफाई करो। अभी हाँ, चलो अभी इतना यहां तक समझ में आ गया कि मैंने स्वैप कर लिया। फर्स्ट स्टेप आपका है स्वैपिंग। सेकंड स्टेप क्या है मेरा कि सर, जो अब मेरा यहाँ पे देखने का मतलब है कि जब मैं लास्ट पोजीशन को हीप बिल्ड करने के बाद मैं स्वैप करता हूँ जब फर्स्ट स्टेप को, तो मेरा जो लास्ट नोड जो होता है, उस नोड पे हमारा करेक्ट पोजीशन वाला एलिमेंट आ जाता है। मीन्स ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया ये एलिमेंट। ठीक है, इसने करेक्ट पोजीशन ले ली कि कहाँ होगा। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड स्टेप में बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं, इसको हटा दूं, क्योंकि ये करेक्ट पोजीशन पे है, तो मैं साइज को रिड्यूस कर सकता हूँ। अभी मेरे पास 7 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7, और सेवेंथ एलिमेंट आपका करेक्ट पोजीशन पे है, तो मैं क्या करता हूँ, एरे को छोटा कर लेता हूँ सर। तो सेकंड स्टेप में मैंने एरे को छोटा कर लिया। इज इट ओके बेटा? जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस और नो, जल्दी से बोलो। अब यस सर। अभी पूरा इटरेशन नहीं हुआ है, देखो अभी मैं पूरा इटरेशन मतलब फर्स्ट स्टेप पूरा यहाँ पे होगा, फर्स्ट स्टेप। अब मैं थर्ड टाइम बोल रहा हूँ कि अगेन आप क्या करो, हीपीफाई करो। या हीपीफाई का मतलब यहाँ पे आप लोगों को फिर से ये देखना है कि कहीं नोड में दिक्कत तो नहीं हो गई। मीन्स अगर मैंने जब स्वैप किया है इस तरीके से, तो कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ गई कि आपका यहाँ पे आपका पेरेंट की वैल्यू कम हो गई हो। हाँ, हो गई दिक्कत। देखो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है। तो जस्ट आपको चेक करना पड़ेगा कहीं प्रॉब्लम, मुझे स्वैपिंग तो नहीं करनी। हाँ, स्वैपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाले चाइल्ड की वैल्यू क्या है, बड़ी हो गई है इससे। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में
हीपिफाई कर दूंगा। मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 30। इज इट ओके? अभी देखो, अभी देखो सब ठीक है, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत है इस वाले कोड में, वो सॉरी इस वाले मीन्स ग्राफ में? अभी 70 को भी यहाँ पे समझ लेते हैं, ये रखा हुआ है। ओके, तो 70 को मैंने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया मतलब कि यहाँ से सेकंड स्टेप में 70 को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने हटा दिया, मीन्स ये ब्रांच आपकी कट हो गई है एक तरीके से, ये ब्रांच कट मान लो, ये ब्रांच कट हो गई, ये निकल गया पार्ट। अब बताओ जो ग्राफ बचा हुआ है आपका ठीक है? इज इट ओके? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। हेलो, समझ आ गया बेटा या नहीं? कोई तो बोलो यार। यस सर आ गया। ओके गुड। तो देखो अब आपकी कहानी क्या हो गई, देखो यहाँ पे भी ये भी स्वैप हो चुके हैं, यहाँ 60 और 30 स्वैप हो गए, तो इनकी पोजीशन भी स्वैप हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप के बाद में आपका क्या क्या पोजीशन आपकी आ गई, ये पोजीशन है। ठीक है, 60, 50, 30, 40, 20, और ये अपनी पोजीशन ले चुका है। अब आपके पास सेकंड स्टेप के लिए एरे कितना प्रेजेंट है सर, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स मेरे पास इस बार 6 एलिमेंट है केवल। ठीक है, 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट के लिए। ठीक है, फिर से मैं क्या करता हूँ, करूँगा यही काम रिपीटिशन में करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यही काम करना स्टार्ट करूँगा रिपीटिशन में। ठीक है, अब रिपीटिशन में यही काम करना स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सर 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 जब ये 60 यहाँ पे आ गया और 70 यहाँ से हट चुका है, तो मैं क्या करूँगा सर, इसको मैं हटा दूँ 70 को, अब आपके पास इतने एलिमेंट हैं। ठीक है, या फिर मैं नया एक डायग्राम बना लेता हूँ, वहाँ समझाऊंगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये आपका कट चुका है, मीन्स 70 को यहाँ पे रख लेता हूँ, ये 7th पोजीशन थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की, ये आपका कट हो चुका है, मीन्स आउट ऑफ द ग्राफ हो गया, आउट ऑफ द ग्राफ लिख दे रहा हूँ, ये आपका एलिमेंट आउट ऑफ द ग्राफ। नाउ सेम 6 एलिमेंट को लेके मैं काम स्टार्ट करता हूँ। 6 एलिमेंट अभी आपके पास क्या है, 60 है यहाँ पे। ओके, 60, 50, 30, 60, 50 और यहाँ पे आ जाएगा कितना था, 30, और यहाँ पे कितना था देख लेते हैं, 40, 20, 10, 40, 20 एंड दिस इज 10। ओके, अब आपके पास 6 एलिमेंट है, तो मैं लिख भी देता हूँ सर, आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब फिर से आपको वही करना है। अब आप क्या करना है, सेम अब प्रोसीजर वही है सर, 3 स्टेप आपने बताए। आपने क्या स्टेप बताया, जो भी आपका फर्स्ट नोड बनता जा रहा है उसको सर स्वैप कर दो, किसके साथ में, लास्ट नोड के साथ में। उसके बाद साइज को रिड्यूस कर दो सर, और फिर बैलेंस कर दो, देख लेते हैं कि हिपिफाई कर लेते हैं, मीन्स सभी चीज ठीक जगह पे है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। ये स्टेप आपका सभी में यही स्टेप लगता जाएगा। मीन्स सर आप बोल रहे हो कि अब आपका 60 बन गया है फर्स्ट नोड और 10 बन गया है लास्ट नोड, सर इन दोनों के बीच में क्या है, स्वैपिंग कर देते हैं। ठीक है, स्वैपिंग कर दी सर, स्वैपिंग कर दी, तो आपका 60 आ गया सर इस पोजीशन पे, और आपका 10 चला गया सर इस पोजीशन पे। आप बोल रहे हो सर कि ये जैसे ही ये काम कर दो उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, इस लाइन को कट कर दो, मीन 60 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है सर, ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। जब ये करेक्ट पोजीशन पे आ गया है सर, तो मैं बोल सकता हूँ जो हमारा 7th प्लेस है, 70 देखो चलता जाएगा, लेकिन इसको हमने कंसीडर नहीं करना है। सेकंड स्टेप में क्या है, हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा सर, 60 यहाँ पे आ गया, इज इट ओके, 60 यहाँ पे आ गया, मीन्स ये दोनों एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए सेकंड स्टेप पे। अब दो एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे, क्योंकि 670 से मतलब नहीं, पहले से ही अपनी करेक्ट पोजीशन पे 60 को हम ले आए। अब देखते हैं सर सिचुएशन क्या है। 60 को हम लोग ले आए, तो मेरे पास अब सिचुएशन क्या हो गई सर, अब सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो गई है, 60 ये निकल गया बाहर, n-1 कर दिया, तो अब 5 एलिमेंट। अब देख लेते हैं कि हमारा कहीं दिक्कत तो नहीं है कोड, मतलब ट्री में कहीं ऐसा तो नहीं पेरेंट की वैल्यू ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। फिर से देखो, आप इसको चेक करोगे, 10 यहाँ आएगा, इस इन दोनों के बीच इस वाले पार्ट को देखो, इतने पार्ट को, तो आप कहोगे सर 10 और 50 में स्वैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 10 और 50 में मैं स्वैपिंग कर देता हूँ, 10 को यहाँ ले आता हूँ, 50 को यहाँ पे ले आता हूँ, तो सर 50 तो आ गया यहाँ पे,
और 10 आ गया सर यहाँ पे। सर ये तो मैंने चेक कर लिया, फिर आपको अगला भी लेवल चेक करना पड़ेगा कहीं। सर इसमें तो दिक्कत नहीं आ गई 10 को यहाँ रखने से? हाँ, दिक्कत फिर से आ गई। अब आपका 40 यहाँ चला जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि फिर से स्वैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर, कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 40 और 10 ये आ गया। यहाँ तक मेरे साथ हो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग मेरे साथ हो? आप लोग समझ में आया यहाँ तक? यस एवरीवन, सर। वेरी गुड। तो चलो अब पोजीशंस लिख लेते हैं सर। 1 पे 50, 2 पे 40। तो अब आपका क्या है सर? सर यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ 40 आ चुका है। ठीक सर, उसके बाद क्या पोजीशन है सर? 30, 10, 20। 30, 10, 20, 30, 10 एंड 20। और सर ये दोनों तो अपनी सही पोजीशन पे फिक्स हो चुके हैं। तो सेकंड स्टेप के बाद दो एलिमेंट आपके सही पोजीशन पे फिक्स हो चुके हैं। इज इट ओके? दिस थिंग इज ओके टू यू बेटा? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ये आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके सर, अब तो सेम ही, हाँ अब तो सर सेम ही करते जाना है। अब क्या है, तो मैं इसी ग्राफ में एक और ग्राफ बना के दिखा देता हूँ लास्ट, जहाँ पे अगर जिसको नहीं समझ में आया फिर से, तो एक ग्राफ और बना लेता हूँ सर। अब पोजीशन ऐसी हो चुकी है सर, 50, 40, 30, 10 एंड 20 सर। अब कुछ सर ऐसा हो चुका है। ठीक है, और मैं नंबरिंग फिर से कर देता हूँ। 1 2, सॉरी 20 क्यों लिखा हूँ, 2 3 4 एंड 5 सर। ओके, तो सर अभी अभी आप बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो सर पहले और लास्ट को स्वैप कर दो। ठीक है, पहले और लास्ट को स्वैप कर दो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं हीरो बन गया इस काम में। पहले और लास्ट को स्वैप कर देता हूँ सर। 20 यहाँ ले आता हूँ, 50 यहाँ ले आता हूँ। जैसे ही मैं ये करूँगा सर, 50 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। करेक्ट पोजीशन पे मतलब एक एलिमेंट को कम करना है। कम करने का मतलब सर इस ग्राफ में यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है, एलिमेंट एक कम कर देना है। मीन्स 5 एलिमेंट थे वो 4 कर देने। तो सर ये करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, ये एलिमेंट आपकी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। करेक्ट है सर, ओके, ये तो करेक्ट हो गया सर। सर फिर से ग्राफ तो चेक करना पड़ेगा, कहीं दिक्कत तो नहीं आ गई, कहीं पेरेंट की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं हो गई? यस सर, पेरेंट की वैल्यू ज़्यादा हो ही गई है। 20, 40, 30 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? तो देखो 40 हमें स्वैप करना पड़ेगा इधर और 20 को लाना पड़ेगा इधर। इज इट ओके? तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं, 40 को रख देते हैं यहाँ पे और 20 को रख देते हैं यहाँ पे। इज इट ओके? फिर से देखो सर, 20 तो यहाँ आ गया, कहीं आपका बैलेंस खराब तो नहीं हो रहा? हाँ खराब हो रहा है। फिर से सर हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैपिंग करनी पड़ेगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, लेवल तो चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो 20 को मैं यहाँ लाऊंगा और 10 को ऊपर ले जाऊंगा। ओके सर, डन। यहाँ तक कोई बच्चा दिक्कत में हो तो जल्दी से बताओ। ये हो गया? जल्दी से बताओ, सबकी समझ आ रहा है? सबकी, एवरीवन, सिंगल चाइल्ड, कोई भी एक बच्चे को भी ऐसा ना हो कि दिक्कत ना हो, जल्दी बताओ। सर ये 10 ऊपर ये 10 और 20 के इंटरचेंज हुआ थोड़ा सा। लास्ट में अच्छा स्वैपिंग का पूछ रहे हो? यहाँ पे देखो 10 था बेटा, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी ये आपका पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अभी देखो क्या हो गया, भले ही ये वाले पे एक ही पेरेंट है, तो इसकी वैल्यू हो गई 20, और सॉरी यहाँ पे 20 था तो मुझे फिर क्यों मैंने स्वैप किया, पहले ऐसा था, सॉरी यहाँ पे 10 था, ये पहले वाला लिख दिया। यहाँ पे 10 था, पेरेंट की वैल्यू आपकी 10 है और चाइल्ड की वैल्यू आपकी 20 है। ओके, यहाँ देखो ये समझ आया? ऐसा था। अब देखो चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा हो रही है और पेरेंट की वैल्यू कम है। देखो ऐसे भी एग्जांपल ले लो, क्या पापा की उम्र बच्चे से कम तो हो नहीं सकती? मीन्स पापा की उम्र सबसे ज्यादा ही होगी बच्चे से, तो इसको ऊपर ले जाना है और इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, इज इट ओके? अब समझ आ गया सर ये? क्वेश्चन में तो अभी ऊपर ही था ना 20। मतलब वो देखना पड़ेगा, ऊपर था 20? अगर ऊपर था तो फिर वही रहेगा। मैंने या तो गलत कर दिया, ऊपर था लास्ट टाइम पे। ओके ओके, तो 20 मैंने गलती कर दिया होगा। तो अगर 20 ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। ओके, 20 यहाँ पे था तो 20 यहीं रहेगा। इज इट ओके? तो वो शायद मेरे से गलती हो गई होगी, मैं 10 और 20। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो गया ना? ठीक है, तो आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन थी तो आपको स्वैप करने की कोई जरूरत नहीं। 10 यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, स्वैप होगी, यहाँ पे गया तो स्वैप नहीं करना है। इज इट ओके? तो आपकी कंडीशन ये बन गई। अगर मैं टेबल में भरूं तो देखो टेबल में 50 तक आप सही आ चुके हो, 50 तक तो आप सही आ चुके हो, 60, 70। अब आपके पास चार एलिमेंट क्या क्या हो गए, 40, 20, 30, 10। 40,
सॉरी दूसरा कलर से कर देता हूँ जो डिफरेंस दिखाई दे। 40 20 30 10, 40 20 30 और 10। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन बेटा आ चुकी है। इज इट ओके? क्लियर हो सब लोग? बताओ जल्दी से, यस और नो। यस सर। चलो अब Yes, मैं यहीं sir. पे, अब मैं इसी में करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी के सभी इसी में देखो, फिफ्थ वाला एलिमेंट हमारा गायब हो गया। अब इस तरीके की सिचुएशन हमारी आ चुकी है। ठीक, फोर्थ। ओके, अब मुझे फिर से मैंने क्या बोला कि आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट को लास्ट बना दोगे। ठीक है, फर्स्ट नोड को लास्ट बनाना है और उसके बाद चेक करते जाना है। ठीक है, तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ सर 40 को पहुंचा दूंगा लीफ नोड पे। लीफ नोड पे पहुंचाने का मतलब सर यहाँ पे आ गया 40 और 10 चला जाएगा सर यहाँ पे। इज इट ओके? और उसके बाद मैं कर दूंगा सर इसे डिस्कार्ड। तो आपका केवल इतना पार्ट बच गया। अब यहाँ पे चेक कर लूंगा सर यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ दिक्कत है, तो फिर मुझे 30 और 10 में स्वैप करना पड़ेगा। तो सर मैं 30 को इधर लिख देता हूँ और 10 को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिचुएशन अब इस तरीके की आ गई है। 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो जल्दी से भर देता हूँ सर। 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा सर, 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। 50 60 70 ये तो ऐसे ही चल रहे होंगे, इसमें तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो मेरे ग्राफ से बाहर ही हो गए। 40 अपनी करेक्ट पोजीशन पे। बाकी सिचुएशन क्या है, 30 20 और 10 की। 30 20 और 10 की सिचुएशन सर आ गई है। इज इट ओके? क्लियर है सब बेटा? फिर से आपका अब ग्राफ कितना बचा सर, इतना सा ग्राफ बचा है, 3 एलिमेंट बचे हैं। ठीक, 3 एलिमेंट अगर बचे हुए हैं तो मैं क्या करूंगा सर, फर्स्ट और लास्ट को मुझे स्वैप करना है। फर्स्ट और लास्ट को स्वैप करना है तो सर 10 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा सर, 10 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा। इसको डिस्कार्ड करना है सर, यस सर। तो 30 अपनी करेक्ट पोजीशन पे सर, इसके आगे और बना लेता हूँ सर, 30 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे। 40 50 60 70 तो सर ऐसे ही चलेंगे। ठीक, और यहाँ पे सिचुएशन खराब हो रही है सर, यस सर, मैक्स मैक्स हाई लगा रहा हूँ, मीन्स 20 ऊपर जाएगा। तो ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया सर, 20 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा सर, स्वैप कर दूंगा। तो मेरा क्या बन के आ जाएगा, केवल बन के आ गया ये, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया सर। लास्ट स्टेप में क्या करना है, अब तो लास्ट स्टेप ही आ जाएगा सर। मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप को, पहले नोड को लास्ट बनाना है, लास्ट नोड सेकंड ही है तो इसको यहाँ पे बनाना है, मीन स्वैप कर देना है। स्वैप करने का मतलब सर 20 इधर आ जाएगा, 10 यहाँ चला गया और सर 20 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद इसको कट कर देना है सर, 20 अलग निकल गया, मीन्स सर 20 आ जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया था लास्ट स्टेप से, पहले वाला स्टेप है शायद। चलो 30 अपनी पोजीशन पे, और मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ लास्ट स्टेप को। तो सर 20 अपनी पोजीशन पे आ गया, तो 20 अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है सर, डायरेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब सर मेरे पास एक ही एलिमेंट बचा, ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो इसके बाद अब क्या है, एक ही एलिमेंट बचा है सर। एक ही एलिमेंट है तो मैं क्या ही चेक करूँ, एक एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड ऑलरेडी है, तो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। तो यू कैन राइट सर दिस इज 10। ओके, तो इस तरीके से इटरेशन करते हुए देखो, अब ये सॉर्टेड है, टेल मी इट इज सॉर्टेड। हेलो प्लीज टेल मी, लास्ट स्टेप में आपका सॉर्टेड हो गया इस तरीके से। तो बेसिकली आप पूरे टाइम पे क्या कर रहे हो कि आप सबसे पहले हीप बिल्ड करते हो, और हीप बिल्ड करने के बाद हीपीफाई लगाते रहते हो। हीपीफाई लगाने का मतलब 3 स्टेप है सर। ये जो स्टेप मैंने बताया कि सर आप क्या कर रहे हो, लास्ट नोड और फर्स्ट नोड को स्वैप कर दो, उसके बाद साइज को एक कम कर दो, और उसके बाद चेक कर लो कि हमारा बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा ग्राफ बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब अपनी पोजीशन पे। और एक ही चीज़ याद रखनी है कि पेरेंट की जो वैल्यू है, पेरेंट की वैल्यू जो वो चाइल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। पेरेंट की वैल्यू क्या है, वो चाइल्ड की वैल्यू से हमारा ज़्यादा होना चाहिए। ये वाला कंसेप्ट हम लेके चलेंगे, और इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाते रहेंगे बार बार, और चेक करते रहेंगे। और हर एक लेवल पे चेक करना है कि एक बार स्वैप किया उसके बाद देखते हैं कि अगले लेवल पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं आएगी देन इट इज ओके। तो पहले तो ये बताओ, एज ए कंसेप्ट वाइज आपको हीप सॉर्ट समझ आया, व्हाट इज द मीन्स ऑफ, मैंने मैक्स हीप का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो मैक्स हीप से बनाना आसान है क्योंकि अपने आप शॉर्टिंग हो जाएगी। मिन हीप से भी ट्राई कर सकते हो, बट उल्टा ट्राई होगा। बट ओके, तो मैक्स हीप पे ही, इसको मैक्स हीप से ही करो, मैक्स हीप से ही हम लोग ट्राई करेंगे। मिन हीप अपने लिए पढ़ लेना, मिन हीप में जस्ट उल्टा होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये नोड है, इस नोड को हम लोग मिनिमम बनाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा था, वहां पे मिनिमम, तो एक बार पढ़ लेना मिन हीप अपने आप ही, मैक्स हीप मैंने बता दिया। तो आपको स्टेप समझ में आया बेटा कि कैसे हम लोग हीप को ट्राई कर रहे हैं? जल्दी से बोलो, यस और नो। यस सर। सब बच्चों को समझ आया? सब बच्चे बोलो, एक ही बच्चा बोल रहा है। यस सर। ओके, गुड गुड गुड। ओके, चलो इसको अगर मैं शॉर्ट में, अगर इसकी एल्गोरिदम को लिखना चाहूँ शॉर्ट में, देखो हीपीफाई का अभी मैंने आपको नहीं बताया कि कोड क्या है, उसका कोड थोड़ा सा बड़ा होगा। बेसिकली इसके लिए मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने निकाला भी था, कोड ही है, ठीक है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा अभी। ठीक, तो आप एक बार उसके कोड को पढ़ लेना कि किस तरीके से उसका कोड, अगर कोड नहीं समझ में आता देन आई विल गो फॉर दिस वन, हीपीफाई वाले बिल्ड हीप और हीपीफाई का मैं कोड आपको ये वाला लिंक भेज दूंगा, या कहीं से भी पढ़ सकते हो आप, जरूरी नहीं है जो मैं लिंक भेज रहा हूँ, जो नहीं बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार उसके कोड को समझना कि कैसे लगा रहे हैं। बाकी शॉर्ट में मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि आप लोग हीप शॉर्ट में क्या कर रहे हो, तो यू आर डूइंग दिस पार्ट इन द हीप शॉर्ट, क्या कर रहे हो, अगर हीप शॉर्ट आपको मुझे डेवलप करना है तो क्या दिया होगा सर, एरे दी होगी, तो आई कैन से सर सम एरे इज गिवन टू मी, साइज दिया होगा एरे का, तो आई कैन टेक सर, सॉरी, आई कैन टेक सर साइज इंट एन लेता हूँ, ओके, साइज दे रखा होगा सर। ओके, इसके बाद मैं पहला स्टेप क्या कर रहा हूँ सर, पहले स्टेप में मैंने किया था बिल्ड हीप, मैं नॉर्मल आपका एक कोड लिखा हूँ जस्ट, जो आपका आपको हेल्प करेगा, बाकी पूरा कोड तो लिखना पड़ेगा आपको। बार बार क्या करना है सर, हीप बनाना है, ठीक है, एक हीप को डेवलप कर लेना है सर। उसके बाद आप क्या करते हो सर, उसके बाद मैं बराबर पहली लाइन में क्या किया था, हीप डेवलप कर लिया था। उसके बाद मैं लगातार क्या है, कोड चलाता रह रहा हूँ। कोड चलाने का मतलब ये तीनों स्टेप बार बार करता हूँ हीपीफाई के, तो इसको पूरा हीपीफाई बोल रहा हूँ कि हीपीफाई वाले स्टेप चलाता रहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है सर, आप हर एक एन के लिए यूज कर रहे हो, और तो कैसे कह सकते हो सर, आई इज इक्वल टू एन, और आप कहोगे सर, चलो मैं ये बता देता हूँ कि क्या लिखा है, आई माइनस माइनस, अभी बता रहा हूँ, पहले मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, फिर आप स्वैपिंग करते हो। स्वैप किस किस के बीच में कर रहे हो सर, जो ए आई आपका है, ए आई और जो लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, ए वन के बीच में, ओके, ए वन लिखा है ये, ठीक, इसके बीच में स्वैप कर रहे हो। उसके बाद सर एक साइज को कम कर लेते हो, एक साइज को कम कर लिया, ठीक, और इसके बाद सर फिर बार बार आप हीपीफाई कर देते हो, हीपीफाई, तो आपका क्या क्या है सर, ए था, वन हो जाएगा, और इसमें एन एलिमेंट ले लिया, एन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे हर एक बार। तो आपका नॉर्मल कोड जो आपका है कि बिल्ड हीप पहला स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप। आप यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि एन आपका एलिमेंट ले लिए थे, एन एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे एन, इसकी एन वैल्यू और यहाँ पे टू वैल्यू, तो पहला स्वैप करने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक जाने वाले हैं, देखो इस नोड पर तो जाने वाले नहीं है, इसलिए हम लोग बैक में जा रहे हैं, और बैक में कहाँ तक जा रहे हैं कि एन की वैल्यू आपकी टू के इक्वल हो जाए, ठीक है, टू के इक्वल हो जाए, एन से स्टार्ट कर रहे हो, बैक हो रहे हो, एक एक एलिमेंट को चेक करते हो कि एन से लेके टू तक चले जाए। फर्स्ट नोड तो अपने आप क्या होगा, सही पोजीशन पे है, और वो लास्ट में स्वैप होके अपनी सही पोजीशन दे देता है, तो एन की वैल्यू टू तक आप रिड्यूस करते जाओगे, तो इस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो पूरा हीप शॉर्ट, ठीक। तो ये शॉर्ट में अब आपको देखो इनके कोड देखने पड़ेंगे कि बिल्ड हीप और आपका हीपीफाई का कोड किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, ये दोनों कोड आपको देखने पड़ेंगे। एक बार ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा देन आई विल टेल यू कि किस तरीके से इसका भी कोड, मतलब आपको मैंने ये समझा दिया है कि ये क्या लिखा हुआ है। अब इन दोनों के कोड एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, वो लिंक भेज दूंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हीप शॉर्ट। थोड़ा सा ये पार्ट मैंने नहीं कवर किया है क्योंकि डीएस में आप लोग हीप डेवलप हीप और हीप कैसे बनाते हैं उस तरीके की कोड करते हो, यहाँ पे हीप सॉर्टिंग पढ़ रहे थे। मुझे एल्गोरिदम के इसका आपको बताना है कि क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बट कॉम्प्लेक्सिटी में फिर अभी बाद में बताऊंगा। नॉर्मल आपको बताता हूँ कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन लॉग एन आती है। अब ये किस तरीके से आएगी ये नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, याद करने के लिए, या अभी इसको समझा दूंगा कि किस तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अभी याद कर लो कि इसकी एन लॉग एन आती है। नॉर्मल देखो एक और चीज बता देता हूँ कि नॉर्मल आपका क्या है, बिल्ड हीप का जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ एन के इक्वल होती है,
ठीक है, यहाँ पे देखो n टाइम्स लूप चला रहे हो तो ये लगभग इक्वल हो जाता है ऑर्डर ऑफ n के। ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n के इक्वल। ठीक है, लूप लगभग ऑर्डर n बार चल रहा है और इसके बीच में स्वैपिंग वगैरह हो रही है, तो ये आपका होता है log n। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला हीपीफाई वाला जो पार्ट है वो n log n के इक्वल बता देता है। अभी मैंने ये नहीं समझाया है, केवल आपको बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट n log n देगा, ये o n देगा। तो इसमें बड़ा कौन सा है? o n log n आपका बड़ा है, तो हम लोग कहेंगे द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज n log n। ठीक, तो ये नेक्स्ट टाइम पे आपको पढ़ा दूंगा कि क्या है। अब आपकी दो शॉर्टिंग और मैं बताऊंगा, वो लैब के टाइम पे बताऊंगा, दैट इज शेल सॉर्ट। ठीक है, शेल सॉर्ट और आसान सी है, और काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट, ये दो सॉर्टिंग और बताऊंगा और शॉर्टिंग को मैं फिनिश करूंगा। बाकी काफ़ी टाइप की सॉर्टिंग मैंने आपको बताई है, तो एक बार रिवाइज कर लो। हाँ, बेसिकली एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये कि 7 अक्टूबर 2021 इस दिन आपका क्विज होगा। ठीक है, मैंने उसमें भी डाल दिया है। और प्लीज़ सबको प्रोपेगेट कर दो, कोई बच्चा इसमें एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। 7 अक्टूबर को, और इसका क्या है, 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है और ये 30 मिनट्स का टाइम होगा। तो ये थर्सडे को है, तो थर्सडे वाली लैब में ही मैं इसको क्या कहते हैं, थर्सडे वाली लैब में ही आपके ये क्विज होगी। ओके, तो ये आपके अनाउंसमेंट है। प्लीज़ इसको मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।